हाँ जी प्लीज। If we say the space is there where there is no any activity at all, and if we consider एक बार activity, फिर से बोलिए, फिर से माइक ले लीजिए। there is a space but there is no any activity as such. हम ओ अभी फॉर एग्जाम्पल द इधर का एग्जाम्पल ले ले, दैट इज बियॉन्ड 2 डिफरेंट प्लैनेट्स और समथिंग स्टार्स एटसेट्रा। आपका वहाँ आपने 3 बातें दी है कि गति, तरंग, दबाव। तरंग व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी, इफ सो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट इन स्पेस। तरंग इज wave, yes, every wave is having frequency. No So in space तरंग रहता है। थोड़ा सा भाषा का गैप हो रहा है। स्पेस में सारी यूनिट्स हैं, एक बात, सारी यूनिट्स क्रियाशील हैं, इन यूनिट्स के क्रियाशीलता का एक बिहेवियर वेव है, तो स्पेस में वेव है, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट, आई एक्सेप्ट इट, इट इज देयर। यहाँ जो बात अपन कह रहे हैं कि स्पेस इटसेल्फ में कोई क्रिया नहीं है, सारा क्रिया यूनिट्स में है, बस इतनी बात कर, बढ़िया, इतनी बात हो रही है। हाँ जी, what I feel is, I'll just say in 1 minute, that is, if we want a philosophy to be holistic, probably what needs to be done is like what Immanuel Kant did. what man? Kant, हाँ, the German philosopher, हाँ, हाँ, what he did was he said there are 4 antinomies, that means dichotomies, like matter and mind. We cannot prove that God exists, and also at the same time we cannot prove that God does not exist. Second antinomy is that we cannot say that space is finite or it is infinite. Neither of these propositions we can prove. And of course, whether the mind precedes the matter or the matter precedes the mind. Because this mind and body, mind and matter dichotomy has been discussed for past at least 500 years or so. So Kant sets a goal for himself. He says there are 4 basic dichotomies and we will not touch upon them because they neither can be proved nor they can be disproved. So he set aside that problem, that burden, he put it aside, and then he talks of his own system. He was a rationalist because he took birth when already scientific scientific developments were taking place, and therefore he is the first rationalist, byproduct of we can say of modern world. That is where the machines had started taking birth. Similarly, in any system, we have to put some limits. Without limits, I do not think that anything can be probably achieved. So I have a feeling that all these questions, whether the God is there or not there, whether there is any mystery or rahasya, we can say that it is probably the manifestation of the matter itself, because even gravitational force, in some way, it will have to be interconvergently of matter and energy. And therefore, whether we would like to reconcile that way or set them put them separately in a box and never touch upon them. So then the whole philosophical system will become absolutely meaningful. But then those questions cannot be answered. That is whether God is there or not. every question will have a practicable answer. Dichotomy is not there in the existence, it is somewhere, it is in our own mind, because we are not able to see the things as they are. Let us see, exactly. let us, आदमी कोई लिमिट बांधना नहीं चाहता है, आदमी असीम में फैलना चाहता है, सब कुछ को समझना चाहता है, और कि चार डिकोटोमी को रख के अब आप क्या रैशनल हो जाएंगे, क्या समझ लेंगे और क्या जी लेंगे, और उन सारी थ्योरीज के बावजूद आज हम कहाँ खड़े हैं ये हमको पता है, है ना? No, that is he sorted out problem for his own philosophical system. मुझको ऐसा लगता है अब कांट सहित सारे महापुरुषों को एक बार थोड़ा आराम करने दिया जाए, थोड़ा सा उनको आराम करने दिया जाए और अपने भीतर के महापुरुष को जगाया जाए, है ना?
मैं मानव हूँ, मुझ में समझने की क्षमता है, एक बार खुली आंख से प्रपोजल सामने है, देखने की कोशिश किया जाए। Yeah. है ना? No, sir, there इन will be- सारी yeah. रैशनैलिटी के बावजूद क्या स्थिति में हम खड़े हैं, इसको मुझको कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे आप बेहतर समझते हैं। Yeah, I agree, completely agree, sir. Only one tiny question remains still, हाँ। that is, any creation is there, man-made creation. मैन मेड। We require a particular artisan to make a table, a chair, or whatever that may be. So this whole universe, हाँ, how it is powered, how it is, what is the engine of उधर it? ही आ रहे हैं, Yeah. उधर ही आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं। आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। नहीं, मैं ऐसा करके मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। Yeah, small मैं कह question. रहा हूँ Yeah, कि वाकई में yeah. Yeah, centuries. Same thing, sir. Yeah. Yes, yes. So same thing. It Yes, is being raised again and बस again. Yeah. आधा घंटा और, उसके बाद दुनिया जहान के सारे प्रश्नों के कैनवास अपना खुल जाएगा। हाँ जी, मैं एक बार फिर से समराइज करूं। हमने चर्चा की कि होने के रूप में यूनिट्स है, स्पेस, तीसरी कोई चीज़ नहीं है ही नहीं। यूनिट्स हैं, स्पेस, ठीक, हमको जांचना है। स्पेस को समझने की कोशिश की तो हमने पाया, अब इसमें क्या दिक्कत है, बच्चों से भी पूछो कि स्पेस कहाँ तक फैला है भाई, तुरंत असीम निकल के आता है। अब इसमें कहाँ डिकोटॉमी है कि ये स्पेस फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है ना? देखिए, दो जगह आदमी की कल्पना छोटी पड़ती है। छोटी इसलिए नहीं पड़ती है कि उसकी मानव में कोई कमी है, इसलिए डिप्रेशन में चला जाऊं कि धरती पे कितने एटम हैं इसको तो मैं गिन ही नहीं सकता कभी भी, है ना? ऐसा सोच के भी आदमी डिप्रेशन में जा सकता है कि क्या ऊपर वाले ने आदमी को बनाया है, वो एटम भी नहीं गिन सकता है कितने एटम धरती में है। क्या इसकी ज़रूरत है? क्या मुझको एटम के, धरती पे कितने रेत के कण हैं, क्या मुझको गिनने की ज़रूरत है? धरती पे पौधों की संख्या क्या होगी, क्या मुझको गिनने की ज़रूरत है? तो बेसिक क्वेश्चन इज समझने की ज़रूरत है। जब हम समझने की बात करते हैं तो अब हमको ये बात, सॉरी मेरा लिंक मिस हो गया है, हाँ वो जो इन्होंने कहा था, हाँ माने ये स्पेस हमारे लिए इस क्षण में एक रहस्य है, या हम इसको, जिस तरह से मैं इस पेन को पहचान पाता हूँ, क्या मैं स्पेस को पहचान पा रहा हूँ कि नहीं? आप हमारी अपनी माँ बहन के प्यार को, दोस्त के प्यार को पहचान पाते हैं कि नहीं? फिजिकल है क्या? और सारी फिजिकल रियलिटी परिवार में इन्वेस्ट हो जाती है। सारा पैसा कमा के कहाँ खर्च करते हैं? परिवार में। क्या मिलता है वापस? सुख की अपेक्षा है ना? अपेक्षा है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि एक रियलिटी, जिसको अभी रियलिटी के नाम पे हम चीज़ों को फिजिकल ही मानते हैं, उस सारी रियलिटी को हर आदमी वहाँ इन्वेस्ट करता है जिसको वो रियलिटी नहीं मानता है। इसका मतलब वो कोई उससे बड़ी रियलिटी हुई कि नहीं हुई? जिसके लिए मैं किसी रियलिटी को इन्वेस्ट कर देता हूँ, इसका मतलब वहाँ कोई बड़ी रियलिटी है। मेरा दोस्त, मेरा परिवार, मेरे संबंध, अभी मैं जिस भी रूप में उनको मानता हूँ, अभी जबकि वो अधूरा है, उसके बावजूद भी वो एक रियलिटी है। तो ये संबंध हमको फिजिकली दिखते हैं क्या? पर क्या इसके फील होने में कोई कमी है क्या? है ना? ये हवा आपको आंख से दिखती है, फिर भी आपको कोई दिक्कत है क्या? हवा है कि नहीं है, इसमें कोई शंका है क्या? तो एक तो ये हमारा थोड़ा सा फिजिकल काफ़ी ये हो गया है कि जो चीज़ें आंख से दिखाई देंगी केवल हम उनको स्वीकारते हैं, है ना?
हमको समझ, आँख की एक सीमा है। अब तो समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बेचारे की अपनी एक सीमा है। वो शरीर अपने आप में एक फिजिकल एंटिटी है, तो फिजिकल चीज़ों को ही फिजिकल एंटिटी से देखा जा सकता है। जो चीज़ें फिजिकल नहीं हैं, विश्वास है ना, सम्मान, समझ, समृद्धि का भाव, इन्हीं की तलाश में सारा साधन इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये अपने आप में रियलिटी है कि नहीं है? है ना, ये अपने आप में रियलिटी है। मेरे आपके बीच में हवा को बाहर निकाला ही जा सकता है ना, इसके बावजूद भी ये जो हमारे आपके बीच की स्थिति है, इसको कोई नाम देंगे कि नहीं? तो ये जो हमारे आपके बीच में है, इसको कहा स्पेस। क्या कहा? हमारे बीच आपके बीच में कुछ नहीं है। क्या नहीं है? यूनिट्स नहीं है, स्पेस इज देयर। जो कुछ है उसको नाम दिया स्पेस, है ना। तो स्पेस हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लेके मामला ऐसा है कि जिसको हम नहीं पहचान सकें, जिसको डिफाइन नहीं कर सकें, उसको सब्जेक्ट कह देते हैं। जिसको फिजिकल है उसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं। जिसको समझना पूरा हो सके, जिसके साथ जीना पूरा हो सके, वो ऑब्जेक्ट है। समझना हो गया, जीना हो गया, और क्या बचा? है ना, तो है ना, समझना हो गया, जीना हो गया, इतना ही होता है। जो भौतिक चीज़ें हैं उसके साथ भी इतना ही होता है। तो एक हमने कहा स्पेस है, ये रहस्य नहीं है, एक रियलिटी है, हमारे आपके बीच में है, यहीं पे है ना। हम आप कहाँ हैं? स्पेस में हैं। एक तो बात अपने कोई पकड़ में आ गई। स्पेस कहाँ तक फैला है? असीम है, साफ सुथरी सी बात है। पारदर्शी है, साफ सुथरी सी बात है, कोई झंझट नहीं, है ना। क्रिया शून्य है, ये भी समझ में आता है कि क्रिया शून्य है। जब क्रिया शून्य है तो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, दृष्टा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रिया शून्य है, वहाँ कोई क्रिया नहीं है। हमने कहा पारगामी है। क्या मतलब? है ना, पारगामी क्या चीज़ है? सारी इकाइयाँ कहाँ हैं? स्पेस में है। स्पेस में कुछ जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, वहाँ कोई क्रिया नहीं है। इसका मतलब है स्पेस का होना, एक रियलिटी जिसका होना, और इकाइयाँ उसमें आर पार। इकाइयों के स्पेस आर पार है और इकाइयाँ स्पेस में मूव करती हैं, है ना। ये पेन स्पेस में मूव कर रहा है, मैं स्पेस में खड़ा हूँ, है ना। इतनी बात हमने अभी तक की। अब थोड़ा सा मेरे और आपके बीच में जो है उसको आप स्पेस मानेंगे या वायुमंडल है? क्योंकि वायुमंडल में तो वायु के कण हैं ही। वही कह रहा हूँ, वायु को तो निकाला जा सकता है, वो नहीं पदार्थ, उसके बाद भी कुछ बचा। नहीं पदार्थ जो हमने डिफाइन किया है उसमें गैस या वायु शामिल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स भाई, मॉलिक्यूल अल्टीमेटली मैटर है ना। नहीं, अगर है तो फिर हम उसको स्पेस, बिकॉज इट इज सी, जैसे एटम या मॉलिक्यूल है तो वो यूनिट है, इट्स अ यूनिट, of course. देन स्पेस इज नॉट देयर। यानी मेरे आपके बीच में स्पेस नहीं, स्पेस वायुमंडल के बाहर हम कह सकते हैं। वैक्यूम क्या होता है? मैं वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, हमने दोनों स्थितियों की बात किया। एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड, ये बात किसको कन्वे हो गई है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? इनके क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? What I understand from that, when we say space, space we consider without any unit. Exactly. Where the gravity momentum of one unit ends and before the start of second unit, that we consider as space. नहीं, फिर से एक बार। Gravity, force of gravity of one unit ends and before the start of second unit, we consider it space. Otherwise, there is a unit. वहाँ तो स्पेस है ही, है ना। ये पूरी की पूरी धरती कहाँ पे है? स्पेस में है ना। तो स्पेस में ही है, तो स्पेस में सारी यूनिट्स हैं, तो स्पेस इज एवरीवेयर। कहीं पे यूनिट्स हैं, कहीं पे यूनिट्स नहीं हैं। But then that space is different because that is characterized by certain features. That is characterized by certain features. For example, if there is, this is the space, and there is one magnet and another magnet, the nail which will be hang in that magnet will be automatically shift to some other because there happens to be magnetic force. एक मिनट आराम से, एक मिनट। मुझे जवाब मिल गया सर।
कि वहाँ यूनिट की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो कि साइंस ऐसा मानती हूँ, पर जहाँ पे यूनिट है यहाँ नेचुरली स्पेस तो है ही है। हाँ जी प्लीज़ एक बार। सर मैंने सवाल पूछा था, मैं ही जवाब दे रहा हूँ, मुझे मिल गया है, आपने मेरी मदद की है, मेरे बाजू में बैठे हैं। इन्होंने मुझे सजेस्ट, आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं? अच्छा, इनका कहना है कि ये जो जिसको मैं गैस या वायु कह रहा हूं, इसके कण भी स्पेस में ही है, और बिल्कुल सही बात है। उतनी ही बात, इट इज एज सिंपल एज Yes, yes. So those units also are in space only. Those units also are in space only. लेकिन मेरा बस वही छोटा सा सवाल था कि छोटे से छोटा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका क्या है, बस वो आइंस्टीन ने एक बार प्रयोग किया, उसने एक छोटा छेद छोटी बिल्ली के लिए, बड़ा छेद बड़ी बिल्ली के लिए बनाया। आगे कुछ नहीं बोलूंगा। हुआ ये न्यूटन के साथ हुआ था सर। न्यूटन के साथ, तो हम लोग जो है न्यूटन से कम नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि माँ को माँ भी कहा जाता है, पिताजी की पत्नी भी कहा जाता है, और मेरे भाई की माँ भी, और मेरी मौसी की बहन भी कहा जाता है। सबका जवाब सेम लगभग आता है। हाँ जी, थोड़ा सा संजय जी, ऐसा संजय जी मत बोलो, संजय जी बोलते तो आपको बड़ा बुजुर्ग लगता है। बुजुर्ग तो है ही हो, नहीं है, अंदर से। अंदर से नहीं, साढ़े 15 का है। चले हाँ जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात आई, सारी इकाइयां क्रियाशील हैं, कोई झंझट नहीं, होने को पहचानना है, जैसा है वैसा पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। इकाई क्रियाशील हैं, बिना बल के कोई क्रिया नहीं है, इसका मतलब इकाइयां बल संपन्न हैं। सभी इकाइयां, चार अवस्थाएं की सभी इकाइयां, सारे ग्रह गोल नक्षत्र कहीं भी होगा, किसी भी गैलेक्सी में होगा, सभी बल संपन्न हैं और बिना ऊर्जा के बल नहीं है। तो सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं, ऊर्जित हैं। All units are energized in the coexistence of space and units. All units are energized in the coexistence of space and units. स्पेस और यूनिट के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है, दो ही चीजें हैं। कुल मिला के इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस है। एंड क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप किसी इकाई को निकाल के स्पेस के बाहर ले जाएं? कल्पना है ना? ठीक, तो धरती इस असीम आकाश में घूमती हुई धरती कुल मिला के किसी स्पेस में ही ट्रेवल कर रही है ना? स्पेस में ही सब कुछ है। सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, ठीक, और एक स्पेस और इकाई के सह अस्तित्व में ही इकाइयां ऊर्जित हैं। अब दो स्थितियां हो सकती हैं, हाँ जी, ऑल ऑफ यू, दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये कि हर इकाई स्वयं में किसी फिनोमिना से ऊर्जित है, एक। दूसरा
यदि इसको ठीक माने, एक एनालॉजी, इसको ठीक माने, यदि सभी इकाइयां किसी फिनोमेना से अपने आप में ऊर्जित है तो चारों अवस्थाओं में हर इकाई का स्वयं में व्यवस्था होना और व्यवस्था में भागीदार होना, परस्पर उपयोगिता पूरकता के सिद्धांत का होना और हमेशा होना। इसका मतलब है कि इन सभी इकाइयों के ऊर्जित होने के लिए जो सोर्स है वो कॉमन है ना। और कॉमन चीज क्या है जो सभी इकाइयों को एक समान प्राप्त है? स्पेस, है ना। इसलिए इसको कहा, स्पेस को एक नाम दिया निरपेक्ष ऊर्जा। सापेक्ष ऊर्जा, फिर से बोलता हूं, all units are energized in the coexistence of space and units। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ये सीधी सीधी बात हम एग्जिस्टेंस में से देख के बोल रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। या तो हर इकाई किसी फिनोमेना से अपने आप ऊर्जित है, हम ऐसी एक कल्पना लगा सकते हैं। दूसरा, जब इस कल्पना को लगा के और रियलिटी को देखने जाते हैं, यदि हर इकाई अपने ढंग से ऊर्जित होगी तो उनके बीच में जो कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है ये डिफाइन नहीं होता है। सारी इकाइयों के बीच जो कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है, चारों अवस्थाएं एक दूसरे को एनरिच करते हुए और डेवलप होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है, चारों अवस्थाओं की सभी इकाइयों का क्रियाशील होना, आपस में परस्पर पूरक होना, है ना, ये क्लियरली एक फिनोमेना, एक हमको स्थिति देता है कि सभी इकाइयों की बल संपन्नता के लिए, ऊर्जा संपन्नता के लिए जो सोर्स है वो कॉमन है। और कॉमन चीज सभी इकाइयों के लिए क्या है? स्पेस। स्पेस के अलावा कोई चीज और है नहीं जो सभी इकाइयों में कॉमन है ना। यहां से हम ये कहते हैं ये स्पेस स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है। स्पेस स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है। कैसी ऊर्जा? एक वो ऊर्जा है जिसको हमने, जैसे थर्मल पावर, उसके पीछे कारण क्या है? कोल। एटॉमिक पावर, उसके पीछे कारण क्या है? एटम। तो जिस ऊर्जा के पीछे हमको कारण समझ में आता है उसको हम कहते हैं सापेक्ष ऊर्जा, रिलेटिव, है ना, उसका रिलेशन पकड़ में आता है। जो स्वयं में ही कारण है, जिसका दूसरा कोई कारण नहीं है, उसको एक नाम दिया निरपेक्ष ऊर्जा, है ना। और ये ऊर्जा सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है, इसलिए एक नाम दिया साम्य ऊर्जा। कॉमन है बिकॉज इट इज कॉमन टू ऑल यूनिट्स, सो नेम गिवन साम्य ऊर्जा। स्पेस और इकाई के सह अस्तित्व में इकाइयां ऊर्जित हैं, ठीक, और सभी इकाइयों में परस्पर पूरकता है। स्पेस और इकाई के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। यहां से हम डिड्यूस करते हैं कि स्पेस स्वयं में ऊर्जा है जिसमें हर इकाई ऊर्जित है, स्वयं क्रियाशील ना होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। फिर से एक बार, स्वयं क्रियाशील ना होते हुए, खुद क्रियाशील नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है ना। स्वयं क्रियाशील ना होते, स्वयं में क्रियाशीलता ना होते हुए, स्पेस में स्वयं में गति तरंग दबाव ना होते हुए समस्त इकाइयों के, ऑल यूनिट्स के क्रियाशील होने का आधार है। प्लीज, बढ़िया। ठीक, चलो।
अब देखिए पूरा मामला क्या पकड़ में आया। स्पेस को हमने एक पूर्ण वास्तविकता के रूप में पहचाना। बिहेवियर देखते हैं थोड़ा सा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पहचानता है और मिनिमम एक एटम कितने पार्टिकल का है? 2 पार्टिकल का। हर पार्टिकल में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, पूर्णता के लिए प्रवृत्ति है, इसलिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पहचानता है और एटम के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है। हर एटम कहाँ पे है? स्पेस में है और ऊर्जित है। और क्या चीज? वो ऊर्जा अपने आप में कैसी है? पूर्णता में ऊर्जित होने के कारण पूर्णता की ओर, व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति है। हर एटम दूसरे एटम को पहचान के मॉलिक्यूल के रूप में ऑर्गेनाइज हो गया। और हर एटम का जो आचरण है, जो उसका बिहेवियर है, वो निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित बिहेवियर है। पूरे एग्जिस्टेंस में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। उसका प्रमाण क्या है? उसका बिहेवियर निश्चित है। उसका प्रमाण क्या है? समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये पूरे एग्जिस्टेंस का डिज़ाइन है। तो मूल में समझ में आता है कि हर पार्टिकल ऊर्जित है, व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है। उसी तरह से मानव भी कहाँ है? स्पेस में। जीवन कहाँ है? स्पेस में। जीवन की क्रियाशीलता को देखते हैं तो उसमें भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है। और एक एटम में भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है। एक एटम भी दूसरे एटम को ढूंढ के फैमिली बना लेता है। मानव भी दूसरे मानव को ढूंढ के फैमिली बना लेता है। तो चारों अवस्थाओं में व्यवस्था में, 3 अवस्थाओं का व्यवस्था में प्रमाणित होना और मानव में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति होना, मानव का डिजाइन में कल्पनाशीलता, कर्मसंत्रता का होना, व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति होना, समझने के आधार पर व्यवस्था में जीना। तो इस आधार पे अब हमको समझ में आता है अस्तित्व में केवल 3 वास्तविकताएं हैं। क्या? जड़ परमाणु, जीवन परमाणु, और ये दोनों कहाँ पे हैं? स्पेस में। पूरा ब्रह्मांड केवल 3 रियलिटी। जड़ परमाणु, कौन से परमाणु? जिनको हमने कहा कि भाई 108 हैं, 110 हैं, जितने भी हैं। और जीवन परमाणु, जीवन को मध्यस्थ दर्शन में या रियलिटी में एक परमाणु के रूप में पहचाना गया। चौथी रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको मानना नहीं है। खूब जांचिए, क्या कोई और इन 3 के अलावा कोई और चीज है? सारी पदार्थ अवस्था, सारा प्राण अवस्था, सारा जीव अवस्था के शरीर और मानव का शरीर किससे मिलके बना है? जड़ परमाणुओं से मिलके बना है, ये हमको पता है ना। जीवन एक और रियलिटी, जीवन परमाणु और स्पेस तीसरी रियलिटी। एग्जिस्टेंस में 3 रियलिटी है, चौथी रियलिटी नहीं है। एग्जिस्टेंस में 3 क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जहाँ तक भी होगा 3 ही रियलिटी हैं, 3 क्रिया है। ये तीनों रियलिटी कहाँ पे हैं? ये दोनों रियलिटी कहाँ पे है? स्पेस में। स्पेस में होने के कारण आधार पर जड़ परमाणु और जीवन परमाणु दोनों का क्रियाशील होना, दोनों की क्रियाशीलता के रिजल्ट में 3 क्रिया का होना, 3 क्रिया के रिजल्ट में
4 अवस्थाओं का होना। कौन कौन सा? पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। कुल मामला इतना। 3 वास्तविकताएं, 3 क्रियाएं, 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाओं को एक शब्द में कहा मानव ने खुश होके। क्या कहा? ये फैला हुआ ऐश्वर्य है ना, नदी नाले गैलेक्सीज, ये फैला हुआ ऐश्वर्य। इस सारे ऐश्वर्य का मूल आधार क्या चीज है? वो क्रियाशीलता। और वो सारी क्रियाशीलता का आधार क्या है? स्पेस, निरपेक्ष ऊर्जा। समस्त ऐश्वर्य का आधार है, सारे ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए एक नाम ईश्वर। क्या? सत्ता। ठीक। एक चीज़ सर, हाँ जी। ये 3 वास्तविकताएं जो आपने बताई हैं, जड़ परमाणु, दूसरा जीवन परमाणु और तीसरा स्पेस, तो तीनों को आप परमाणु की तरह ले रहे हैं, यानी स्पेस भी एक विशेष तरह का परमाणु है? ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात होने दीजिए। स्पेस विशेष तरह का परमाणु नहीं है। एक मिनट स्पेस, एकदम आपकी बात नहीं नहीं, सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर तीनों का परमाणु होना जरूरी नहीं है, जड़ तो परमाणु है ही, ये तो हम जानते हैं। तो जीवन यानी भावनाएं, देखिए हम शरीर को भी परमाणु में गिन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भावनाएं हैं जो कि जड़ में नहीं होती, तो उसके लिए हमने जीवन शब्द का उपयोग किया है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, हम सबको मालूम है अब तक। तो जीवन को जीवन ही लिखें, परमाणु लिखने की क्या ज़रूरत है? कन्फ्यूजन होता है। भावनाएं परमाणु के रूप में तो है नहीं, है ना? संभव ही नहीं है। इसीलिए जैसे स्पेस के साथ साथ आपने परमाणु लिखना जरूरी नहीं समझा, मुझे लगता है जीवन के साथ भी परमाणु न लिखें तो भ्रम नहीं होगा। फिर लिखने या नहीं लिखने का प्रश्न नहीं है, उसके होने का सवाल है। तो जीवन परमाणु कैसे है ये बताइएगा प्लीज। वही क्वेश्चन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन अपनी जगह जेन्युइन है। तो एक तो ये क्लैरिटी हो गई कि हम यूनिट किसको बोलते हैं? जो परमाणुओं से बना हुआ अब तक का यही। और परमाणु यूनिट का मतलब है जिसकी बाउंड्री दिखाई देती है उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए परमाणु भी एक यूनिट है। हाँ, परमाणु तो यूनिट है ही। मानव भी एक यूनिट है। यस, तो जड़ परमाणु समझ में आ गया। ये आ गया। इधर परमाणु एक यूनिट है जिसकी बाउंड्री दिखाई देती है, तो उसको डायमेंशन है। स्पेस व्हेन वी से इनफाइनाइट, देयर नीड्स नॉट टू बी अ डायमेंशन। वो नहीं, हो ही नहीं सकता वहां डायमेंशन, इसलिए उसको कहा असीम। डायमेंशन नहीं है, उसका काउंटिंग नहीं कर सकते। इसलिए जिसका काउंटिंग नहीं कर सकते उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक, बढ़िया है ना। तो स्पेस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, स्पेस में सारी यूनिट्स हैं, है ना, ये बात होगी। तो एक तो ये आ गया कि स्पेस को एक भी नहीं कह सकते, स्पेस को एक भी नहीं कह सकते, है ना, असीम ही कह सकते हैं, उतना ही कहते बनता है। कुछ और शब्द हैं जो दिए जाते हैं, व्यापक, आकाश, सत्ता, है ना, ये कुछ और नाम है जो दर्शन में आपको कहीं कहीं मिलेंगे। स्पेस को यूज कैसे नहीं कर
नहीं, यूज़ कर सकते हैं मतलब यहाँ से उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ, चलो यहाँ ही है ना? यहाँ तो नहीं एक ही नहीं, इनका यूज़ करने का जो सेंस है, जैसे मैं पेन को उठा के अपने किसी काम में लेता हूँ, है ना, मैंने स्पेस अपने आप में क्रिया नहीं है, केवल होना है। उसमें आप अपन ना भी जाएं तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी, आगे चलें, आपके क्वेश्चन को ले लें। आकाश तो ठीक है, वो तो नहीं, आपके क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। चलिए, अब एक बार थोड़ा सा मैं इसको पूरा कर दूं जहां से अपन बात शुरू किए हैं, फिर वापस आते हैं। अब तक हमने ईश्वर के बारे में क्या सुना था? कण कण में है ना? ठीक ही है। ईश्वर कैसा निकला? ईश्वर कण कण में है, और कण कण कहाँ पे है? ईश्वर में है। कण कण ईश्वर में है, और कण कण कहाँ पे है? ईश्वर में है। ये ठीक ही है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और ईश्वर स्वयं में कैसा है? स्पेस को ही हमने एक नाम दिया, असीम है, पारदर्शी है, क्रिया शून्य है, वो कुछ करता नहीं है, वो कुछ भोगता भी नहीं है, वो समझने वाला भी नहीं है, केवल होना है। किस रूप में होना है? व्यक्ति के रूप में होना नहीं है, ऊर्जा के रूप में होना है ना? फिर हम कहते हैं एक दूसरी बात, एक बार पूरा कर लें। फिर हम कहते हैं दूसरी बात कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है ना? ये क्या हो गया? जब हम उसकी मर्जी बोलते हैं तो ये क्रिया है कि नहीं है? ये क्रिया हो गया। तब हमको ये समझ में आता है यहाँ मर्जी नाम का चीज तो है नहीं, इट इज नॉट ए क्रिया। तो हम ये कह सकते हैं सब कुछ नियम पूर्ण है। हो सकता है इसका कहने का आशय हम कहें कि सब कुछ नियम पूर्ण है, ऐसा एक आशय निकाला जा सकता है, क्योंकि क्रिया कहने से वो यूनिट हो गया। एक ही चीज यूनिट भी हो और स्पेस भी हो। यूनिट होगी तो स्पेस नहीं है, वो पर्टिकुलर चीज। स्पेस है तो वो यूनिट नहीं है ना? तो एक चीज क्लियर हो गया कि ये अपने आप में इसका नेचर पता चल गया, कैसा है, क्या है ना? ऊर्जा स्वरूप है, पूर्ण है। ये एक पार्ट पूरा हो गया। ठीक, हाँ जी, आप कुछ कहें। ऊर्जा बोलेंगे तो उसको यूनिट देना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शब्दों निरपेक्ष ऊर्जा, देयर यू आर यूजिंग द कांसेप्ट ऊर्जा, इफ इट इज ऊर्जा यूनिट देना पड़ेगा। वो थोड़ा ऊर्जा शब्द के साथ हमारा कंडीशनिंग परेशान करता है। ऊर्जा शब्द का अभी तक हमारा मतलब ही क्रिया है ना? ऊर्जा शब्द के साथ अभी तक जो हमारी जानकारी है उसका मतलब ही है कि वो क्रिया है ना? उसमें एक्शन है। अभी तक ऊर्जा शब्द के साथ हमारी ऐसी स्वीकृति है। इसको ऊर्जा ना कह के आप एक्स कह लो। ये वो चीज नहीं है जो ऊर्जा के नाम से अभी तक हमारे रेफरेंस में है। ये ऑल टुगेदर दिस इज सम डिफरेंट रियलिटी। चूंकि रिलेट कहां से कर रहे हैं कि सारी इकाइयां क्रियाशील हैं। क्रियाशील हैं इसका मतलब बल संपन्न है, इसका मतलब वो ऊर्जा संपन्न है। सारी ऊर्जा का आधार यही है, स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है। इसलिए वो ऊर्जा शब्द यहाँ आके, इसलिए उसको सामान्य ऊर्जा ना कह के उसको डिफरेंशिएट कर दिए निरपेक्ष ऊर्जा, ऐसा। तो वो वाला ऊर्जा नहीं है। हाँ जी प्लीज। ना हो आगे चलकर इसके लिए पूछती हूँ। हाँ जी। स्पेस अपने आप में कोई ऊर्जा नहीं है। स्पेस को इट इज निरपेक्ष ऊर्जा, दैट इज इकाई से यूनिट से ली हुई ऊर्जा। ना 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 एवरी यूनिट इज हैविंग इट्स ऊर्जा। नहीं नहीं नहीं, इकाई के पास अपना, हम ये कह रहे हैं कि यूनिट बल है। इकाइयां स्पेस में होने हैं और वो ऊर्जित हैं, ये हमको समझ में आता है। हाँ। और सभी इकाइयों में परस्पर पूरकता है। इसका मतलब देयर इज वननेस, कॉमननेस, और केवल एक ही चीज सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है, जो कि स्पेस है, ऊर्जा है, स्पेस है। तो ये स्पष्ट होता है कि ये ऊर्जा, ये स्पेस स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है ना?
और यूनिट और स्पेस के को एग्जिस्टेंस में सारी इकाइयाँ ऊर्जित है, एनर्जाइज्ड है ना, ये कह रहे हैं। देखिए, यूनिट कहें और स्पेस ना हो, क्या ये कल्पना कर सकते हैं? है ना, तो इसका मतलब यूनिट बोलते ही हाँ, निरपेक्ष ऊर्जा। क्वेश्चन ये आता है कि स्पेस का खुद का ऊर्जा कैसा है ना। स्पेस स्वयं में ऊर्जा है, ये समझ में आता है, सूचना है, तृप्ति इस बिंदु पे है ना, हम स्वयं उसको, तीसरी कोई चीज़ नहीं है, एक तो ये समझ में आता है। यूनिट्स अपने आप में एनर्जाइज्ड होती तो उनके आपस के बीच का जो ये हार्मनी है, ये इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते। अब केवल स्पेस बचा है ना, जब हम कह सकते हैं यही स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है। ऊर्जा मीन्स अ रियलिटी which is responsible for the क्रियाशीलता of all units in the existence। सभी इकाइयाँ ऊर्जित, इकाई हो और ऊर्जित हैं, सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं, बेटर से क्रियाशील हैं। Then is that the inference in everybody, in every mind there lies Ishwar? Is that the inference we want to draw? So अब तो ये हो गया कि all units are in ईश्वर। बट कण-कण में ईश्वर है, ईश्वर में। हाँ, तो जो बेसिक अजम्पशन है कुल मिला के ये हुआ कि स्पेस स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है ना। ये स्पेस जिसको अभी तक हम कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है ना, वो स्पेस स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है। सारी इकाइयाँ स्पेस में होने से, स्पेस और इकाई का कोएग्जिस्टेंस में यूनिट्स एनर्जाइज्ड है। स्पेस इटसेल्फ इज ऊर्जा in the form of energy, energized, all units are energy that is energized। right। Where do they draw their थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज। माइक units are energized, but energy has to come from somewhere. It cannot be within it. It cannot be its own. It cannot be within it. So it has to be somewhere else. नहीं वो एक उसमें रिकॉर्डिंग में आ जाए। So now we have a problem. Where is this energy? Energy is not within the unit because they are energized. So it has to be outside the units. If there's only space and units, two things, the energy has to be in the space. So they attract this energy and get energized. So by being units in space, they are energized. Attracts का भी चक्कर नहीं है, attracts का भी चक्कर नहीं They है। are in space. They are in space. That's why they get energized. Therefore, by inference, space has energy. It has to have energy, unless you find something else. So space itself is in the form of energy. But one more problem we will get in. The moment all energy in space, can energy be independent of a molecule or atom? What is that energy we are talking? Because we have a scientific definition, that's why we are getting into problem. Let us try to understand what you mean by that energy. Units coexistence gives space energy. That was your statement. One shiver at a time. हाँ जी। Particular system, there are certain inconsistencies which Please. happen due to the terminology used over here. हाँ। The first and foremost is urja has been used here in terms of energy, whereas in one sutra you have given on 28th, it is said urja का अंतर्नियोजन ही विकास है। वहाँ अपन जीवन शब्द लगा दिए थे, जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जा इज सेपरेट, Okay. सापेक्ष ऊर्जा इज सेपरेट, निरपेक्ष ऊर्जा इज टोटली Cosmic सेपरेट। energy. Okay. Now, so this kriyashilata, Right. this exactly is defined in Kant's philosophical system. He calls as entelechy. Entelechy, L-E-C-H-Y. It is exactly the same thing. And this is one thing that kriyashilata, how it is going to help unify the whole system, even though Jivan Parmanu we will have lots of doubts still,
what is Jivan Parmanu. We'll talk about. Yeah, and what I wanted to say is that just with the help of a few categories, whether it is possible to give a holistic system wherein what we find reality is actually in a continuous flow. And when there is a continuous flow, the perception of it also varies from era to era. For example, for Newton, space was built up of ether. Came Einstein into the scenario and he gave us space-time continuum. And probably there will be, again, metamorphosis is this concept of space in future. It is bound to happen. Therefore, one basic question arises that why philosophy should incorporate all the latest developments into its own philosophical system, whether philosophical system, because I find right from the 2,500 years ago, philosophy has not been able to reconcile what you call the Vijnana and the other part of it, Jivan, what we are all talking here. So is it not better like Kant that we put restriction and we don't incorporate anything? Because we have lots of inconsistencies. For example, okay, your space is endowed with the urja. Okay, this is a different kind of urja. And I understand that sapeksha nirpeksha urja is like particle and antiparticle or matter and antimatter. But it is very difficult with our, what you call, vision of today as a man. It's very difficult to grasp the concept of this nirpeksha and sapeksh urja. It's very difficult. इसी के लिए अध्ययन की ज़रूरत है. ये केवल सूचनाएं हैं. और रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि हम जो फिलॉसफी अपने आप में कुछ और कहे, जैसे कल जो फिर से एक बार बात हुई थी कि एक हमारे पास फिलॉसफीज़ का मतलब नहीं है. मतलब कुल इतना है कि रियलिटी है, एग्जिस्टेंस इज देयर एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड इट. तो पूरा समझा जाए कि पार्ट में समझा जाए. No, we should try to understand in the holistic view. In the holistic way. But whether we will be थोड़ा सा एक और होलिस्टिक व्यू में समझना है, ये एक बात है. जैसा है वैसा समझना है, समझने के बाद पता चला कि होलिस्टिक है. No, sir. Why I am making this point, sir? I'll give you one more example, a very small example of Leibniz, the mathematician. Leibniz, the French mathematician. What he did, he was the contemporary of Newton, and they have had a lot of dialogue in between them. Newton was Newton because he had established his theory. Leibniz was a mathematician and pure abstractist. Even though all that is true, but his philosophical system appears to be very, what you call, full of light, as though. What he says, he puts forth the concept of a unit which is called as monad. It has some Greek root somewhere, monad. Mono means one. So he says unit is monad. And then he builds his monadology based on this idea of monad, so which becomes an entity. Now, nobody has ever tested, on examination, nobody has found monad, because which has been proved wrong in the times of Newton, because he stuck to his ethereal particles, whereas Leibniz to his monads. And monads have a certain characteristic properties by which they communicate between themselves. And this is how the continuum is, space. So he was trying to explain the idea of space in his time. And Newton, since he had developed what you call calculus, which was altogether a new groundbreaking truth, and therefore he could propound theory of gravitation. Then we come into another era of Einstein. We find a space-time continuum he talks about. So the reality changes. Space is no more the same space. Likewise, now the question is how the gravitational force traverses through that. That still remains to be. Space. These are not the scientific space. This space is Yeah. other than his meaning. Yeah. 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 You are trying to bring that meaning here. Yeah. Then ask him to reconcile. The meaning given for space is what is other than Yeah. units. No, sir, I am not bringing that concept. I am just showing that how variable the concept of space could be. Yeah, as a hypothesis, I agree. I agree perfectly. Let us understand this, then Yes. we will go there. Yeah. Or are there anything other than units? No, sir, now there is one more No, inconsistency one which minute. is. Let's finish this, then we go to the new problem. Yeah. Is there anything other than units, or units alone are there? No, sir, for the units, there has to be unifying No, force. we will come later on. First, are there anything other than units?
No, sir, it is His very proposition is yeah. all that is other than units is space. Yeah, One view can be taken as space is zero, everything is units. yeah, So this unit is also different. yeah. This Now, is different. having accepted space, he put a proposition, units are energized. For them to get energy, they have to get this energy from somewhere. Either it should be self or it has to get somewhere else. So the proposition that you have to ask is, are units self-energized or they have to get from somewhere else? So, sir, if they have their own, that is called as Nirpeksha Urja. So If they don't have- bring in terms. Yeah. Then first of all, so somewhere energy is there. Yes. So he made the proposition, energy is in the space. Sir, there is one more. I am just pointing out. One second. 1 minute, 1 minute. Within the space, the same energy will impact at different units differently. Yes. That's the point which he will lead. Yes, Now, yes. 1 minute, but I will tell you, electricity is there here, but we are not able to capture it. The moment it's captured here, you put your finger, you get hurt. Though that energy is there, depending upon their structure, molecules, etc., different units in different shapes at different times get this energy in different solutions. So how do we call that whole energy which is not at displayed through units? By itself it doesn't get displayed. Then the problem will come of reconciliation. Yeah. Sir, there is one more. Prashant, only 1 minute. Let me complete. Okay, sir. So, sir, what happens now that Karta, Bhokta, Drashta? Now, this is taken from the Upanishads. This idea of Karta, Bhokta, and Drashta. That is possible. हाँ, एक मिनट. Yeah. क्योंकि ये माना गया कि ईश्वर ही सर्वज्ञ है, Yeah. ईश्वर ही करता है, Yeah. सब कुछ ईश्वर करता है, ऐसा हमारा, और वो कण कण में है. तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हमारे बीच में प्रचलित हैं, अब एक एक करके हम उसको, यदि हम मानते हैं कि कोई चीज़ है और वो कण कण में है, वो रियलिटी No, sir, I have got that. I just want to make a point. Only 1 minute I'll take. हाँ. That is all. No problem. Because I found something is there which is not reconciling with the existing positive thoughts. That is why. Karta, Bhokta, Drashta is actually in the context of man. There is a Yes. subject and there is an object. बहुत बढ़िया. And then the question of subject-object comes, which is actually being sorted out in Upanishads. So if space is Karta, Bhokta and Drashta, then why not we substitute this for space? The God itself, because God also is a category, अभी आते हैं ना, posited. उधर तो अभी अपन गॉड का So- तो नाम नहीं लिए हैं. अभी No. केवल एक, मैं आ रहा हूँ ना, अभी आधी बात पूरी हुई है ना. So what I am saying is why why there is a need for another philosophical system if we understand the same thing which is already defined prior to this. I have कर लेते हैं मेरे ख्याल में. that feeling. Yeah. हाँ, बिल्कुल ठीक है. आपका thank you. फीलिंग ठीक है ना. बहुत क्लियरली यदि आपके फीलिंग की बात करें, तो आप जिस फीलिंग की बात कर रहे हैं उसमें ये कहा कि सब कुछ जो है ब्रह्म से आता है ना. सब कुछ स्पेस से निकला है, एक थ्योरी ये कहती है. भौतिकवादी जो थ्योरी है वो कहती है कि सारा चैतन्यता वो मटेरियल का ही एक डेवलप्ड एक्सप्रेशन है. ठीक, ये दो हमारे पास है, जिसको कल बाबा ने कहा जरासंध. एक मिनट, एग्जिस्टेंस का हमने दो टुकड़ा कर दिया. एक तरफ हम कहते हैं कि सब कुछ जड़ है और जड़ का विकसित रूप चैतन्यता है. एक तरफ कहते हैं ये जड़ वड़ कुछ नहीं है, ये सब माया है या कुछ और है, मिथ्या है. ब्रह्म ही सब कुछ है और सब कुछ ब्रह्म से निकला है. क्या हो गया? अब हम आए ना, जड़ ब्रह्म से निकला इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, ना जड़ से स्पेस निकला इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता. दोनों हैं, ऑल यूनिट्स आर इन स्पेस. यही वास्तविकता है ना. निकले का प्रमाण नहीं है का प्रमाण है. आज है, अभी है, दैट्स इट. तो एक बात तो ये कहना चाहूँगा और पूरी सभा से, है ना, कि समझने जीने की हमारा सारा कुल मिला के मामला है कि हम जी सके. और मैं ही नहीं जी सकूं क्योंकि मेरा परिवार में यदि कोई ठीक से नहीं जी पाता है तो उसका प्रभाव भी मुझ पर पड़ता है. समाज भी ठीक से जी सके, हमारे पास एज ए होल जीने का कोई बात उपलब्ध हो जाए. मानव के पास एक ही भरोसा है कि यदि सच्चाई जैसी है उसको वैसा
तो इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्टेंस में नहीं है, हमारी समझने की यात्रा धीरे धीरे और बेहतर और बेहतर और बेहतर के लिए हम प्रयासरत हैं। तो जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम शुद्ध रूप से यहाँ फिलॉसफी का कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस जैसा है ना, जैसा है। जब हम बात कर रहे हैं तो हमको समझ में आया स्पेस है और स्पेस में यूनिट्स है। एक बात, यूनिट्स को देखा तो पता चला दो तरह की यूनिट्स हैं, ठीक, जड़ यूनिट और चैतन्य यूनिट। स्पेस में यूनिट्स, ये इतना मिला के कुल मामला है। क्रिया को देखा तो पता चला 3 क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, और पता चला 4 अवस्थाएं। अब जितनी भी थ्योरीज एक्सप्लेन करेंगी, कहीं से भी हम कुछ भी बोलेंगे, वो इसी में से किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कहा जाएगा, है ना। अब हम यदि पूरी तरह से जैसा है वैसा समझ पा रहे हैं, उसका प्रमाण होगा कि हार्मनी से हम जी सकें। यदि इस बात के बावजूद भी हम हार्मनी से नहीं जी पाते हैं तो एक और अनुसंधान की जरूरत पड़ेगी, है ना। यदि ये भी पर्याप्त नहीं पड़ता है तो क्या हम रुक जाने वाले हैं? क्या मानव जाति रुक जाने वाली है? हमको एक और अनुसंधान की जरूरत पड़ेगी। तो अभी विनम्र निवेदन ये है कि उन सारी थ्योरीज को जो भी समझने के लिए पुरुषार्थ हमने पहले किया ही है ना, आज तक करते ही आ रहे हैं। अभी एक बार जो सामने आया है, इसको ये जैसा है वैसा देखने की एक बार पूरा कोशिश करते हैं। यदि अपर्याप्त होगा फिर और कुछ करेंगे। एक मिनट चलिए, जो कह रहा हूँ बहुत देर से। हाँ जी, आप बिल्कुल कह लीजिए। जी हाँ, बहुत बेताब हूँ। ओए होए। दो यस नहीं, और मैं बड़ी शालीनता के साथ दूसरों को बोलने भी देता हूँ, इसीलिए प्रॉब्लम, इसलिए इनको भी बोलने दिया जाए, बीच में कोई रोकेगा नहीं। हाँ सर, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। एक तो जो मैंने सोचा है, ये ऊर्जा के बारे में बात वहीं से शुरू हुई थी। हाँ। ऊर्जा को हम लोग यहाँ किलोवाट के तौर पे ना लें जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, गति के तौर पे लें। आपने जो लॉजिक दिया, नहीं शक्ति नहीं गति, आपने जो लॉजिक दिया था कि चारों अवस्थाओं में गति होती है, क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता, और क्रियाशीलता यानी गति होती है, और एक ही चीज़ उनमें कॉमन है और वो है स्पेस। तो अपनी गति को स्पेस से लेते होंगे, तो इस गति को ही ऊर्जा का हम एक रूप माने, उसको शक्ति या किलोवाट के रूप में ना देखें। तो मेरा ख्याल है हम लोग को समझने में आसानी होगी थोड़ी। और दूसरा पॉइंट जो वर्मा सर का था कि अभी तक जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन जो हैं, उनमें पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है? पहला है मैं कौन हूँ, और दूसरा ये सृष्टि क्या है। मूलभूत प्रश्न ये 2 हैं उन सारे दर्शनों में। मध्यस्थ दर्शन में पॉइंट ऑफ डिपार्चर ही डिफरेंट है, और वो है जीना क्यों है और जीना कैसे है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दोनों का स्कोप अलग है, दोनों को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। यस, नहीं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। दोनों को, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है सर। वहाँ देखिए बिल्कुल अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ बिल्कुल अलग। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री की तुलना नहीं कर सकते, माने कुछ ऐसी बात है। दूसरी एक लाइन में अलाउ कर दीजिए मुझको बोलने के लिए। हाँ सर बोलिए, एक लाइन में अलाउ कर दीजिए कि कंपैरिजन बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी एक ही रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 चीज़ों के साथ कैसे बात करेंगे, है ना। ये तो बिल्कुल सहमति है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि पूरा समझ के कंपेयर कर रहे हैं कि आधे अधूरे में कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं एक बार पूरा देखने के बाद फिर सब कुछ देखा जाए। भी बात तो आखिर किस रियलिटी बारे में ही हो रही है, और वो रियलिटी तो इन्हीं है, फिर कंपेयर किया जाए। अभी हो क्या रहा है, हाँ तो हम इसको पूरा समझे हैं, हाँ हो सकता है जिसको हम कह रहे हैं उसके बारे में हमारी कितनी पकड़ है, हो सकता है उसके बारे में आपकी पकड़ पूरी हो, लेकिन इसके बारे में नहीं मेरी भी पकड़ पूरी नहीं होगी। बस मैं बात पूरी, थोड़ा सा डिस्कशन, बस मैं अभी वाइंड अप करूं कि नहीं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर कि वो उन 6 दर्शनों में सृष्टि से शुरुआत करते हैं, इसलिए बात ईश्वर तक पहुंचती है। यहाँ हम जीवन से शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश क्यों होना चाहिए? ईश्वर को डिफाइन करने की कोशिश ही नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उन 6 दर्शनों में भौतिक शास्त्र, किसी भी दर्शन में भौतिक शास्त्र या बायोलॉजी या रसायन शास्त्र को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं हुई है, बिल्कुल अलग माना गया है। तो यहाँ पे हम, ये भी एक दर्शन है, तो इसको हम जीवन दर्शन तक ही क्यों ना सीमित रखें, उसमें भौतिक शास्त्र और बायोलॉजी को जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत सिर्फ कल से हो रही है, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं। 2 लाइन में बिल्कुल क्लियर एक नोशन, 1 मिनट। सारा मामला क्यों जीना है, कैसे जीना है। यदि मेरे जीने में फिजिकल चीजें आती हैं तो उनको समझूं कि नहीं समझूं, एक। यदि मेरे जीने में ये ईश्वर देवी देवता कहीं शामिल हैं तो इनको समझूं कि नहीं समझूं। जीना है
तो आदमी के जीने से जुड़ा हुआ जितना भी फैलाव है सबको समझना हमारी जरूरत है। जिंदगी को टुकड़े टुकड़े काट के नहीं किया जा सकता। सच्चाई अपने आप में अखंड है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। जीवन के स्कोप में ईश्वर कहाँ से आता है? जीवन के स्कोप को छोड़िए, मानव के जीने में यदि वो कहीं प्रभावी है तो उसको समझना हमारी आवश्यकता है। देखिए फिर अपन वहीं आ जाएं, मानव है, एक मिनट, मानव है, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, समाधान पूर्वक सुखी होता है। समझने के लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल उसके पास है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसलिए संपूर्ण को समझने से कम में चुप ही नहीं होता है। संपूर्ण को समझना मेरी आवश्यकता है ना। इसलिए एक बिल्कुल गांव में रहने वाला आदमी जिसको कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका और इराक आपस में क्यों लड़ते हैं, वो उसकी चर्चा करता है क्योंकि वो कंसर्न फील करता है। तो मानव के विचारों का फैलाव, ये चांद क्यों है, ये धरती क्यों है, मैं क्यों पैदा हो गया, ये सृष्टि क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, कौन बना दिया, ये बड़े नेचुरल से क्वेश्चन हैं जो लगभग हर मानव के आसपास घूमते हैं। इस तरह से मानव को खंड खंड करके हमने उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं। पर्सनल लाइफ अलग, फैमिली लाइफ अलग, बिजनेस लाइफ अलग, स्पिरिचुअल लाइफ अलग। जीने वाला वही गरीब एक है, उसके इतने टुकड़े किए हैं कि वो इन टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते ही मर जाता है। कुछ नहीं, मानव है, जीना है, तो संपूर्ण को समझना मेरी ज़रूरत है, क्योंकि संपूर्ण के साथ जीना है ही है। ये मानव को देख लीजिए। अब ये कौन से के साथ नहीं जी रहा है उसको पहचान लीजिए, कहाँ ये छोड़ के जिएगा। तो हर मानव संपूर्ण के साथ जी ही रहा है ना। इतना ही है, हार्मनी से जिएगा कि बिना हार्मनी के जिएगा। समझेगा तो हार्मनी से जिएगा, बिना समझे डिसहार्मनी से जिएगा, वो उसको स्वीकार नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक बार समझना तो संपूर्ण को ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद जितना भी हमने कुछ आज तक पढ़ा है वो रियलिटी के बारे ही कुछ कहा गया है, हम उस पर बात कर सकते हैं। Sir, let me Please. make a point. Well, Mr. Sanjay, whatever he said is very valid. What he said, that is Dr. Verma, what theory he has put forth. वर्मा जी ने जो बताया है, जो विचारधारा है, वो बेस्ड ऑन द साइंटिफिक, ये जो विचारधारा है बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी। सो आई थिंक ये दो विचारधारा जो है ये रेल की पटरी की तरह जा रही है और वो कहीं भी मिल नहीं सकती है। ओके, so this is one point here. So we should not think of that if these two lines are joining, they cannot join. That is what I feel, number one. Number two, the energy and energize, two things which have come. Professor Narasimhan has said energize, but energize means from where the energy is coming. Okay, can we put forth this particular concept with the best of the scientific, that is law of thermodynamics, that is energy neither created nor destroyed. This is my point. देखो, आपके पूरे डिस्कशन में एटम, बल्ब, ये सारे विज्ञान की संकल्पना आपने यूज की है, उसको कहाँ भी डिफाइन नहीं किया है। और एक कि जो विज्ञान का मॉडल है उसको भी हमने फुल ट्राई नहीं किया है। एक तो विज्ञान मानता है, आप जो बोल रहे कि सारी थियरीज ट्राई कर चुके हैं तो इसको भी ट्राई करेंगे, ये सवाल यहाँ पर है ही नहीं। विज्ञान एक जिंदा मॉडल है, इट इज़ लाइव मॉडल। इसमें और जो प्रश्न स्पेस, जब आज प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि स्पेस पे लेवल पे आप बात कर रहे हो, बल के बात कर रहे हो, ऊर्जा की बात कर रहे हो, एटम की बात कर रहे हो, ये सारी संकल्पनाएं जो है वो विज्ञान में डिफाइंड है। यहाँ पर हमने उसको डिफाइन भी नहीं किया। और हम उल्टा कहेंगे कि आपने अगर विज्ञान की थियरी समझी ही नहीं तो उसको कहने ज़्यादा ना कहे तो बेहतर है। जो विज्ञान के ये लेवल की जिस लेवल की संकल्पनाओं की वर्मा जी बात कर रहे हैं, वो संकल्पनाओं को आप अगर समझे हो तो ही उसके बारे में बोलो, और आपकी लेवल की संकल्पना है उसको बात करो। वो थियरी का भी आप समझो, 10 साल का 12 साल का विज्ञान की संकल्पनाओं का कोर्स करो सही माने में, तब भी इसकी तुलना हो सकती है। तो यहाँ पर ये मॉडल का जो है वो अभ्यास किया जाए। हो गया बात पूरा, है ना? कहाँ पहुँचे?
बताओ कहाँ पहुँचे ये बताओ। अभी देखो, एक मिनट, पहुंचने की बात एक मिनट, जो है, आराम से। वर्मा जी ने जो कहा, आपने जो कहा, और अजीव जी ने भी कहा, जो भी कुछ कहा, केवल संदर्भ कितना है? केवल संदर्भ इतना है कि कोई बात सामने, एक तो ये कि मानव जाति की सारी यात्रा क्रमिक यात्रा है। अभी तक जो भी कुछ हुआ उस सारे बेस को ख़त्म करके और कोई बिल्कुल ऑल टुगेदर नई कोई बात होगी, ऐसा कभी नहीं होता है ना। जो भी कुछ होता है एक स्टेप और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर। चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की है, उन समझने की कोशिश में हमारे जीने के में जितना गैप बचता है उस गैप को हम कहीं तलाशते ही, ठीक। तो अब जो भी विज्ञान के माध्यम से जो भी कुछ हमारे बीच में आया उसका जो उपकार हुआ सो हुआ, है ना, उसमें कोई बात ही नहीं है। जो नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया, ये सारी डिसहार्मनी, ठीक। तो उस जो कुछ हुआ उसका सम्मान करते हुए, ये बात शुरू में जब फोंडेकर जी ने बात उठाई थी, है ना, उसका सम्मान करते हुए अब केवल इतना मामला है कि कोई एक नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आ रही है, उस टर्मिनोलॉजी और उस एक्सप्लेनेशन को में पूरा गुजरे बिना अपन कंपेयर करने जाएंगे तो वो स्थिति नहीं बनेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार अपन चीज़ को पूरा देखने के बाद फिर जो भी सारी थ्योरीज़ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, आराम से उस पर बैठा जा सकता है। यही 1.5 दिन में और यही 7 दिन में सब कुछ फैसला होना है क्या, है ना। तो एक बार हम जैसा है, ये है कि जो संकल्पनाएं इसमें यूज हुई है, बल जैसी, एटम जैसी, ऊर्जा जैसी, ठीक है ना, संकल्पना डिफाइन नहीं किया गया है, and then try to propound, because the basis of assumption we doesn't know, we do not know, so वही then we cannot accept it. इसीलिए हर शब्द को अपन परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, है ना। पूरी की पूरी एक परिभाषा संहिता ही लिखी गई है ना, पूरा का पूरा हर चीज को अपन डिफाइन टोटल में क्या करते आ रहे हैं, संबंध, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, है ना। पूर्णता क्या है, विश्वास पूर्णता, विश्वास क्या है, समझना जीना समझाना, और किए ही क्या है ना। इतना ही करने की कोशिश की है कि एक एक चीज को अपन एक्सप्लेन करके और जो रियलिटी है उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश। अब फिर बात यही आई कि सारी चर्चा सूचना है, सूचना तक, सूचना से क्या चीज हो गई, शब्द, अर्थ और वस्तु, है ना। हमारा सारा चर्चा का कंफ्यूजन कहाँ पे है कि ये जो वस्तु है इसके बारे में हमारा कंफ्यूजन है। हम चर्चा कहाँ पे कर रहे हैं, शब्द पे, ठीक। तो शब्द और वस्तु तक के बीच में सारी फिलॉसफी है। तो एक बार शब्द के साथ जो उसकी परिभाषा है उसके साथ हम वस्तु को देखना कोशिश करेंगे और जो भी कुछ हमको दिखाई देगा, तो अभी केवल शब्द इंट्रोड्यूस हुए, कोई सूचना हम तक पहुंची, और यदि हमको लगता है कि हाँ कोई रियलिटी की बात हो सकती है, इसको और गहराई से आगे समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि कन्फ्लिक्ट की जगह नहीं है, केवल शब्दों के मीनिंग के साथ और पूरा बिना समझे हम कहीं कंपैरिजन के लिए जाते हैं या अपने भीतर किसी आशंका के साथ हम प्रश्न करते हैं, केवल मामला इतना है ना। तो मेरे को लगता है एक बार इसको पूरा किया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी।